Hello everyone. Good evening, guys. हाय गुड कैसे इवनिंग हो सब सर। लोग? अच्छे हैं Good सर। evening, MD. Good evening. Good evening. Everyone is good. Great. All right. Let me present my screen and let me start the session. People will join gradually. No worry. Uh, Let me present my screen. Let me know once you can able to see my screen. Okay. So a warm welcome to everyone in this software manual testing and automation testing course. So today we are going to learn about the very important thing. What are the importance? What is the software testing? What is the current situation of the market? What things we are gonna cover? What things we are not going to cover? सारी चीजें हम पढ़ने वाले जो those people are having a career gap, those people are working as an manual testing, how exactly we can switch, how basically we will get placed, all things we are going to learn this today. Okay, so so Sabika, again I'm repeating for all of you guys, a warm welcome to everyone in this software manual testing and automation testing course, guys. Okay, so, so today we are going to learn about the course introductions. What is the course we have? What course content we have? What is the things required right now in market? क्या चीजें एक्सपेक्टेड होती है? क्या पूछा जाता है? क्या स्किल्स होना जरूरी होता है ताकि विल गेट एन जॉब? So all thing we are gonna learn, guys. Okay. So let's go ahead with an introduction, guys. हम क्या करते हैं? हम थोड़ा introduction की तरफ जाते हैं कि introduction में you have to tell me about your first name, about your last name, and what currently you are doing. इतना ही आपको बताना है. तो who would like to go first? चलो कौन जाना चाहता है? Anyone? श्रावण, शिवन, चारिका, संजना, राजश्री. Anyone? सर मैं तो पहले इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। Yes, yes, yes. Apart from other people, anyone is here, guys? Great. Okay, so let me introduce myself. अगर आप नहीं देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं. Let me introduce myself, guys. Probably you might also heard about myself, like who I am exactly, और क्या है and what is the thing basically. Well, let me introduce myself, guys. So my name is Ganesh Jadhav. I'm your trainer. I'm your mentor. So if you talked about my education, I've done my engineering in IT. I have 13 plus years of working experience in IT industry. Apart from it, guys, I'm working as an automation lead. Apart from it, if you talked about the training, I'm giving trainings in the different institute, different IT companies since 10 plus years. Apart from it, guys, I'm an official member of QA and Selenium Forum all over in Asia. And I'm corporate training partner with these companies, TCS, Capgemini, Accenture, Infosys, Edubridge, and few, institute as well. Probably you might heard the name of CDAC, Seed Infotech, where I'm giving the training, guys. Okay. If you're really passionate about the automation, आप सच में automation के लिए passionate हो, सच में if you want to learn not only automation, if you really want to learn about the testing, you can follow me on my official YouTube channel, which is named as Ganesh Jadhav Automation Studio. This is what guys my official YouTube channel we have, where you can able to find me. अगर हम जाते हैं यहाँ पे, you can see that this is an official website, which this is an YouTube we have, and this is my official YouTube channel where you can find out the whatever latest technology related video we have. So जो भी है automation testing के related जो भी updates आते हैं, whatever things we have, you can just simply follow me and simply get the things. अगर आपको कुछ issue है automation setup करने में कुछ issue है, तो you can simply find out the videos from here, guys. Okay. Okay. So this is what, guys, I want to tell you about myself. Okay. Now, sir, let's move on to the syllabus. कि syllabus exactly क्या है, क्या चीजें cover करने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं. Let me quickly tell you about the syllabus test. ठीक है? So syllabus में सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जो चीजें required है right now for testing, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. Whatever things are required, वो सारी की सारी चीजें हम in detail पढ़ने वाले हैं. So let's talk about the syllabus. तो syllabus जानने से पहले सर ये ITSO services है क्या? What is the ITSO services we have? So let me quickly open the official website of the ITSO services. This is what, guys, an official website of the ITSO services. ITSO services is a product-based and service-based company we have. ITSO services is working in the multiple area. Like they are having their own product.
They are providing the services as well for custom software development. Apart from it, ITSO services are involved into the outsourcing as well. And ITSO services are involved into the training and parts as well, institutional part as well. This is what, guys, I want to tell you about the ITSO services. Okay. So then, what syllabus we are gonna cover? तो अगर आप यहाँ पे कोर्सेज पे जाते हो और अगर आप यहाँ पे देखते हो पहला ऑप्शन, तो दिस इज व्हाट द फोर्थ सिलेबस विल हैव, वेयर वी कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. मेनी पीपल हैव अ क्वेश्चन, सर आई हैव अ करियर गैप, सर मुझे टेस्टिंग का कुछ भी पता नहीं है, सर बेसिकली मुझे कोडिंग का कुछ पता नहीं है, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं जॉब स्विच कर सकता हूँ, क्या सर मुझे जॉब मिल सकती है? इन सारे क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिल जाएगा. बट हमें याद रखना है, जब भी आपको पढ़ना है, whenever you have to learn, whenever you want to get the job, skill set always matter. अगर आपके पास अच्छा skill set नहीं है, then guys you will always struggle in market, and that is why we are gonna learn the things here in detail. तो guys सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं what is manual testing. सर मैनुअल टेस्टिंग क्यों पढ़ने वाले? बिकॉज ऑफ गाइस कोई भी ऑटोमेशन, कोई भी टेस्टिंग करने से पहले हमें वी हैव टू मेक श्योर दैट कि वो प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है या नहीं. कोई भी टेस्टिंग प्रॉपर्ली करने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने से पहले, कोई भी ऑटोमेशन करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज वर्किंग इट प्रॉपर्ली मैन्युअली और नॉट. जब तक मैन्युअली कोई चीजें आपकी वर्क नहीं होती, वी कांट प्रोसीड फर्दर. एंड इसीलिए मैनुअल टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा, तो सर क्या मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर जॉब है? इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता है, मैनुअल टेस्टिंग के लिए जॉब बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन के लिए, दोनों के लिए जॉब है, बट सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग के लिए आज की ड्यूरेशन में जॉब नहीं है. तो गाइस हम मैनुअल टेस्टिंग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. तो फिर भी हम क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि गाइस कभी भी कुछ भी डायरेक्टली ऑटोमेशन नहीं होता है. मैं फिर से रिपीट करता हूं, कभी भी कुछ भी डायरेक्टली ऑटोमेशन नहीं होता है. हम जो भी चीजें करते हैं डायरेक्ट, हम सबसे पहले मैन्युअली टेस्ट करते हैं और फिर ऑटोमेशन करते हैं. नाउ मेनी पीपल हैव अ क्वेश्चन, सर तो फिर मैन्युअल टेस्टिंग के लिए कोई डिफरेंट रिसोर्स होता होगा और ऑटोमेशन के लिए डिफरेंट रिसोर्स होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैनुअल और ऑटोमेशन आज की ड्यूरेशन में, करंट मार्केट में, करंट कंपनी में, करंट टीम में एक ही बंदा करता है. तो अलग अलग रिसोर्सेस नहीं होते. अभी पहले जैसे अलग अलग रिसोर्सेस हमारे नहीं होते, हमें क्या याद रखना है. तो मैनुअल टेस्टिंग में हम क्या पढ़ने वाले? सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच, स्टैटिक टेस्टिंग से लेके डायनेमिक टेस्टिंग तक. टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग प्रिंसिपल क्या है, आपके अलग अलग मॉडल्स कौन कौन से, अजाइल मॉडल कौन सा है, आपका स्पाइरल मॉडल, बी मॉडल, इटरेटिव मॉडल, आपकी जो अलग अलग टाइप के टेस्टिंग होते हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, स्मोक, सैनिटी, यूनिट, रिग्रेशन टेस्टिंग, नॉट ओनली थियोरेटिकली, इवन सारी चीजें हम प्रैक्टिकली पढ़ने वाले. तो प्रैक्टिकली कैसे पढ़ने वाले? अब गई मेरी जो अभी जो 9:15 बजे की बैच है, वहां पे एक बेसिकली प्रोजेक्ट चल रहा है. उनका मैनुअल टेस्ट जस्ट फिनिश हुआ और उनका प्रोजेक्ट चल रहा है. अगर आप देखोगे यू कैन सी इस तरह से हम लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे. यू कैन सी इस तरह से हम इन डिटेल टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे. यू कैन सी लाइक ऑल थिंग वी आर लर्न प्रैक्टिकली. हम सारी चीजें क्या करेंगे? प्रैक्टिकली हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. हमेशा याद रखना है. तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, सारी की सारी इन डिटेल पढ़ने वाले. मतलब जिस तरह से आपका लाइव आईटी इंडस्ट्री में काम होता है वही हम पढ़ने वाले. जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एज अ मैनुअल टेस्ट अगर ज्वाइन हुआ होगा तो प्रॉब्ली यू विल गेट एन आइडिया. यही होता है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले, वही आपको 101% एज इट इज वैसा ही यूज करना है. सो यस, वी आर गोना लर्न द मैनुअल टेस्टिंग इन डिटेल, नॉट ओनली थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली एज वेल वी आर गोना लर्न. तो मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है? लोकलाइजेशन टेस्टिंग, इंटरनेशनल टेस्टिंग, एड ऑफ टेस्टिंग, बडी, पेयर, गोरिल्ला, मंकी टेस्टिंग, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, आपकी जो अलग अलग एसटीएलसी टेस्टिंग होती है, उसकी टेस्ट स्ट्रेटेजी, टेस्ट सिनेरियो, ये सारी चीजें पढ़ने वाले. मतलब दोज पीपल डजंट हैव एनी आईटी एक्सपीरियंस, कोई नॉन टेक्निकल पर्सन से, सर मैंने तो कंप्यूटर में ग्रेजुएशन किया है, सर मैंने नॉन इसमें ईएलटी से मैं ग्रेजुएशन किया है, या नॉन टेक्निकल पार्ट में ग्रेजुएशन किया है, तब भी सर कैन आई लर्न दिस पार्ट? मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि 2 साल फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड, बीए बैकग्राउंड, they are successfully working in IT industry since 5, 6, 7 years. Okay, कोई केमिकल बैकग्राउंड से था, कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड से था. The only thing is IT industry has a very clear cut rule. अगर आपके पास नॉलेज है then you can just work happily. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है then you can't work happily. This is very simple straightforward rule we have. Okay, तो हम इन डिटेल पढ़ने वाले बग कैसे क्रिएट करते हैं, टेस्ट केस कैसे क्रिएट करते हैं,
ये जो मैंने अभी आपको जो मेरी जो बैच है जो अभी चल रहा है, जहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग के लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस चल रही है, वहां पे देखोगे जिस तरह से हम इन डिटेल टेस्ट केस करेंगे कि कैसे टेस्ट केस क्रिएट करते हैं, हाउ एग्जैक्टली वी कैन क्रिएट नॉट ओनली गाइस ओवर द जीरा ओनली, हम नोटपैड पे पहले क्रिएट करेंगे, देन विल क्रिएट द टेस्ट केस ओवर द एक्सेल फाइल, और फिर उसके बाद वी विल क्रिएट अ टेस्ट केस ओवर द जीरा। तो ये जीरा इंपोर्ट होता है। कुछ कुछ कंपनी में पहले टेस्ट केस एक्सेल फाइल में लिखी जाती है, फिर उसको जीरा में ऐड किया जाता है। तो कैसे ऐड करते, कैसे नहीं करते, सारी चीजें इन डिटेल पढ़ेंगे, हमेशा याद रखना। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन। सो वंस वी आर डन विद दिस थिंग, व्हाट इज नेक्स्ट थिंग वी हैव, और क्या कवर करने वाले, तो डिफेक्ट बग कैसे लॉक करते हैं, आपका बग कैसे, डिफेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होती है, सारी चीजें इन डिटेल पढ़ेंगे। और गाइस हमारा लाइव प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस भी हम कवर अप करने वाले, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट डेमो भी दिया। सो दिस इज हाउ गाइस मैनुअल टेस्टिंग इन डिटेल वी आर गोना रन। तो फिर भी ये होती क्या है, बड़ा सिंपल है गाइस, कि अगर मेरे पास कोई एप्लीकेशन है, सपोज मेरे पास क्या है गाइस, आईसीआईसीआई बैंक का दिस इज एन एप्लीकेशन दिया, और अगर मैं, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है कि बैंक एप्लीकेशन डेवलप करो जहां पे लॉग इन सिक्योर्ड होना चाहिए, तो एज अ कस्टमर मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा गाइस, कि यूजर शुड बी लॉग्ड इन विथ एन वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड ओनली, वैलिड क्रेडेंशियल के साथ ही वो लॉग इन होना चाहिए। ये मेरा क्या है, दिस इज वॉट माई बेसिक एक्सपेक्टेशन। ये क्या है मेरा बेसिक एक्सपेक्टेशन। तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और जो एक्चुअल बिहेवियर है ऑफ द एप्लीकेशन, ये प्रॉपरली वर्क करता है, यानी जब हमें ये वेरीफाई करना होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं गई, टेस्टिंग कहते हैं। तो गई अगर जैसे कि यहाँ पे देखो, इफ आई एम गोना ओपनिंग दिस पार्ट, अब गई जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी ये एक्सो सैंडे अवेलेबल है, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, व्हाट विल बी माय एक्सपेक्टेशन, कि मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे लैंड करना चाहिए। तो ये कस्टमर का यूजुअली एक्सपेक्टेशन होता है। तो जब जब हमें चेक करना होता है, यू कैन सी, जब जब हमें चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है गाइस, कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल प्रोडक्ट बिहेवियर ये ठीक से काम कर रहा है, यानी जब हमें वेरीफाई करना होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट गाइस, हम टेस्टिंग कहते हैं। तो इसीलिए हम इन डिटेल टेस्टिंग यहाँ पे पढ़ने वाले, हमेशा याद रखना। अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली भैया, जस्ट अ मिनट, ये होने के बाद मैनुअल टेस्टिंग जैसे हो गया, देन वी आर गोना लर्न अबाउट द एसक्यूएल। सर एसक्यूएल मतलब डेटाबेस, सर एक डेटाबेस टेस्टिंग क्यों पढ़ने वाले, व्हाई वी आर गोना लर्न अबाउट द डेटाबेस टेस्टिंग, देखते समझते, लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप पूरे वर्ल्ड का कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, एनी एप्लीकेशन यू कैन पिक अप, आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो वेब एप्लीकेशन होता है, यू कैन सी दिस इज वेब एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन जिसको मैं ऑनलाइन ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करता हूँ। तो जब भी मैं कभी भी कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करता हूँ, तो एप्लीकेशन का क्या होता है, सबसे पहले यूआई होता है। यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस। सर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, ऐसा जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा यूआई जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट गाइस, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ए यूआई। तो हर यूआई जो होता है वो कनेक्टेड होता है डेटाबेस को, हर यूआई जो होता है कनेक्टेड होता है डेटाबेस को, और ये जो इन बिटवीन जो लेयर होती है, हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करते, बीच में लेयर होती है एपीआई। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो हम जब भी यूआई को करते हैं, वो एपीआई को ट्रिगर होती है, एपीआई आपका डेटाबेस में डेटा ट्रिगर करता है। एपीआई क्या करता है, डेटाबेस में डेटा ट्रिगर करता है, और फिर डेटाबेस में से डेटा जो होता है आपको रिटर्न होता है, और फिर आपके जो एपीआई जो होते हैं यूआई पे रिफ्लेक्ट होते हैं। आपके जो एपीआई जो होते हैं यूआई पे आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसीलिए हम डेटाबेस, भले ही आप टेस्टर हो, आपको डेटाबेस का नॉलेज होना जरूरी होता ही होता है गाइस। मार्क माय वर्ड, अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन होंगे, ओपन नौकरी.com, कोई भी गूगल पे सर्च करो टेस्टिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है टू गेट द जॉब, चैट जीपीटी एआई से पूछो, सारी चीजें पूछो, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, वॉट एवर सिलेबस बेसिकली आई मेंशन, ये सब कुछ आपको वहां पे मेंशन होगा। सो मतलब इंक्लूडिंग एसक्यूएल एज वेल। तो एसक्यूएल का नॉलेज होना जरूरी है। तो यस, हम यूआई टेस्टिंग भी पढ़ने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम डेटाबेस टेस्टिंग भी पढ़ने वाले हैं। तब तो फिर ये व्हाट अबाउट एपीआई, यस गाइस एपीआई टेस्टिंग भी हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखो गाइस, यू कैन सी, आर यू एबल टू सी दिस एपीआई टेस्टिंग। तो यस, वी आर गोना लर्न अबाउट द एपीआई टेस्टिंग। तब तो फिर एसक्यूएल क्या होता है, SQL stand for structured query language,
ये डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है सर, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपकी कीज क्या होती है, आपके ऑर्डर बाय क्लॉज, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, एग्रीगेट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, आपके जो अलग अलग डीडीएल, डीक्यूएल, डीसीएल क्वेरीज, आपके जो ज्वाइंट्स होते हैं, वो सब कुछ हम इन डिटेल पढ़ने वाले, तो एसक्यूएल भी हम क्रैच से पढ़ने वाले। तो गाइस इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे, वी आर गोना लर्न अबाउट द यूआई टेस्टिंग, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एपीआई टेस्टिंग, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेटाबेस टेस्टिंग। मतलब अगर आप जॉब के लिए जाते हो, कोई भी ओपनिंग होने दो, भले एपीआई टेस्टिंग की ओपनिंग होने दो, भले यूआई टेस्टिंग की ओपनिंग होने दो, यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल एरिया। डेटाबेस टेस्टिंग के लिए डेडिकेटेड ओपनिंग नहीं होती है, नो नीड टू वरी, उसके लिए डेडिकेटेड ओपनिंग नहीं होती है, मेनली ओपनिंग जो होती है आपकी यूआई और एपीआई। तो हम दोनों चीजें पढ़ने वाले, डेटाबेस भी पढ़ने वाले। तो जैसे हमारा एसक्यूएल हो गया, अब हम पढ़ने वाले व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी जावा। सर वाई जावा, मतलब जावा कितनी है सर, तो कोडिंग भी हमें सीखना होगा, आंसर इज सर इंडेक्स कोडिंग सीखना होगा, बिल्कुल नहीं। अगर इंडेक्स कोडिंग सीखना है तो व्हाई यू वांट टू बी अ टेस्टर, हम सीधा डेवलपर बन जाएंगे, राइट। हमें बेसिक कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी है। और गाइस मार्क माय वर्ड कि अगर आपको आज की ड्यूरेशन में कोडिंग का नॉलेज है, देन एंड देन यू विल बी सर्वाइव। आई एम टेलिंग यू द ट्रू फैक्ट हियर। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। जैसे कि पहले जो इट्सो सर्विसेज, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे याद है, इट्सो सर्विसेज में एक कंटेंट राइटर की सेपरेट डेडिकेटेड पोजीशन होती थी, कंटेंट राइटर की सेपरेट पोजीशन होती थी, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की सेपरेट पोजीशन होती थी। आज की ड्यूरेशन में कहाँ पे वो पोजीशन, इट इज कंप्लीटली मर्ज, देयर इज नो पोजीशन राइट, एआई सारी चीजें कर लेता है। माय पॉइंट इज, जितना आप टेक्निकल काम करोगे, जितना आप प्रॉपरली काम करोगे, उतना आपका सिक्योर रहेगा, उतना सिक्योर रहेंगे। तो इसीलिए हमें कोई भी एक लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको एक आ गया ना, यू कैन स्विच ग्रेजुअली, जैसे आपको जॉब लग गई, धीरे धीरे टाइम टू टाइम बेसिकली यू कैन स्विच, आप इधर उधर की चीजें पढ़ सकते हो। तो ये गाइस कोर जावा हम कैसे हम पढ़ने वाले हैं। अब मेनी पीपल हैव अ कंफ्यूजन, सर तो फिर सर जावा पढ़ने के लिए हमें सी प्लस प्लस का भी नॉलेज होना जरूरी है, सी प्लस प्लस ऐसा कुछ। गाइस दिस इज कंप्लीटली फॉल्स मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम टेलिंग टू यू, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, टाइपिंग, जावास्क्रिप्ट, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है गाइस आपकी। कोई भी लैंग्वेज की किसी के ऊपर भी कोई भी डिपेंडेंस नहीं, हमेशा याद रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट इसीलिए भी कंफ्यूज होते हैं, सर नहीं नहीं हमें तो पहले सी तक पढ़ना होगा, सर हमें सी प्लस प्लस पढ़ना होगा। गाइस इसको इतनी सारी लैंग्वेज अगर पढ़ने जाओगे ना, एक दो साल तो इधर ही निकाल लोगे, और इतना टाइम नहीं है बेसिकली। ओके, तो हम कोर जावा यहाँ पे पढ़ने वाले। अगर किसी को जावा का जे भी नहीं पता है, तो ऑल थिंग वी आर गोना लर्न हियर फ्रॉम स्क्रैच। बेसिक्स ऑफ जावा क्या होता है, डाउनलोडिंग से लेके इंस्टॉलेशन से लेके जो भी आपके जेवीएम, जेडीके, जावा टोकन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले, लूप्स पढ़ने वाले, फंडामेंटल ऑफ जावा पढ़ने वाले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर पढ़ने वाले, एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्ट्रिंग क्लासेस और आपके फाइल हैंडलिंग, रैपर क्लासेस, कलेक्शन क्लासेस, सारी चीजें हम जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जावा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर व्हाई जावा इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइस अगर मुझे मेरा अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आई वांट टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, तो गाइस वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज इज जावा, वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज इज जावा, क्योंकि जावा प्रोवाइडेड दैट काइंड ऑफ फीचर। और गाइस लगभग लगभग 31 ईयर्स से जावा मार्केट में, इसलिए जावा हैज एन वाइड स्कोप। ओके, तो यस वी आर गोना लर्न दी जावा हियर फ्रॉम स्क्रैच। उसके बाद जैसे हमारी कोर जावा हो गया, तो फिर कोर जावा पढ़ने के लिए क्या टूल यूज करने वाले हैं, तो गाइस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंटेलिजेंट आइडिया टूल। हम क्या यूज करने वाले गाइस, इस तरह से हम इंटेलिजेंट आइडिया टूल यूज करेंगे और इसी के अंदर कोडिंग करेंगे। कैसे करेंगे, दैट आल्सो आई एम गोना टेल यू, नो नीड टू वरी। तो जैसे कोर जावा पढ़ेंगे सर, तो हमें ऑटोमेशन के लिए जावा जानना जरूरी है गाइस। अगर आपको जावा नहीं पता है तो यू कांट डू दी ऑटोमेशन, नहीं कर सकते हो आप। ओके, और दिस इज स्किल सेट इज रिक्वायर्ड। अब गाइस बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट थे कि 2000 मैनेजर लेवल, उनको 22 25 ईयर का एक्सपीरियंस था, बट वो में था। कंपनी हायर्ड मी, दे गेव द कॉन्ट्रैक्ट टू मी, आई ट्रेन टू दोस कैंडिडेट्स। सो द माय पॉइंट इज, अगर आपका एज कितना भी है और या एंट्री लेवल पे भी हो, तो आपके पास ये स्किल होनी ही चाहिए।
जैसे कि कड़ी धूप में जाना है तो एक ऑटो वगैरह कैब वगैरह से अंदर जाना ही बेहतर होता है, उसी तरह से आज के ड्यूरेशन में इफ यू वांट टू गेट दी जॉब, अगर आपको जॉब सिक्योर करना है, अगर आपको मैनुअल से ऑटोमेशन पे जाना है तो क्या ये स्किल सेट होना जरूरी है। तो कोर जावा होने के बाद देन वी आर गोना लर्न अबाउट दी सेलेनियम। तो सेलेनियम क्या होता है? सेलेनियम, दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सेलेनियम। ये जो मैंने यहाँ पे ओपन किया है ना गाइस, दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सेलेनियम। सेलेनियम जो है ये 2008 में लॉन्च हुआ है, जो कि मोस्ट स्टेबल है आज की ड्यूरेशन में। ओके, सेलेनियम जो है ये वेब एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करने का काम करता है। सर डू यू हैव एनी एग्जांपल? यस गाइस, आई हैव एग्जांपल, यू कैन सी। ये देखो, ये मेरा सॉल्व डेमो एप्लीकेशन है। दिस इज व्हाट गाइस, दिस इज माय सॉल्व डेमो एप्लीकेशन। इसको मैंने आई जस्ट ओपन दिस सॉल्व डेमो एप्लीकेशन मैन्युअली। मैंने क्या किया गाइस, मैंने मेरा एप्लीकेशन मैन्युअली यहाँ पे ओपन किया। यू कैन सी दिस इज व्हाट गाइस, आई एम जस्ट ओपनिंग द थिंग्स मैन्युअली है। ओके, तो इसी को कहते हैं मैनुअल टेस्टिंग। बट जब मुझे कोई एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट करना होता है तो दैट टाइम व्हाट गाइस, वी हैव टू डू दी ऑटोमेशन। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, सेम एप्लीकेशन, आई एम जस्ट चेंजिंग द यूआरएल हियर, जस्ट अ मिनट। मैं सिर्फ यूआरएल चेंज करता हूं यहाँ पे, यू कैन सी। एंड लेट मी रन दिस केस, यू कैन सी गाइस, मेरी टेस्ट केस प्रॉपरली रन हो जाएगी और आपको यूआई भी दिखा देगा। तो जब जब मैं कभी भी कोई भी ऑटोमेशन करता हूं विद द हेल्प ऑफ दी सम ऑफ द एक्सटर्नल टूल्स विथ एन ओपन एआई, यू कैन सी, इसी को हम कहते हैं ऑटोमेशन। ये देखो ऑटोमेटिकली हुआ ना गाइस, मैंने कुछ किया नहीं। तो दिस इज हाउ गाइस ऑटोमेशन वी हैव टू डू, और इसीलिए हमारा ऑटोमेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑटोमेशन के लिए वी आर गोना लर्न अबाउट दी सेलेनियम। तो सेलेनियम क्या है, इंस्टॉलेशन से लेके, हिस्ट्री से लेके, वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर, वेब ड्राइवर फीचर्स, आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाइंड एलिमेंट्स मेथड, जो भी सारी चीजें हम इन डिटेल यहाँ पे स्क्रैच से पढ़ने वाले। अलर्ट कैसे होता है, स्टैटिक वेट क्या होता है, डायनेमिक वेट क्या होता है, इम्प्लिसिट वेट क्या होता है, एक्सप्लिसिट वेट क्या होता है, गेट विंडो हैंडल्स क्या होता है, डिजाइन कैपेबिलिटी क्या क्या होती है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या होता है, आप स्क्रॉल डाउन कैसे करोगे, ये सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच हम पढ़ने वाले सेलेनियम के अंदर। ओके, वन बाय वन पढ़ेंगे। अब ये होने के बाद, उसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी मैविंग। क्या पढ़ने वाले गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी मैविंग। तो मैविंग ये क्या करता है, जैसे कि गाइस हम सभी को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए वी रिक्वायर्ड गूगल मीट। हम सभी को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, गूगल मीट इज रिक्वायर्ड। तो गूगल मीट प्लेटफॉर्म है जो कि हम सभी लोगों को एक जगह पे गैदर कर रहा है। उसी तरह से जब जब मुझे अलग अलग प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी चाहिए होती है, अलग अलग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यू कैन सी दिस इज द फॉर्मवर्ड एक्सएमएल फाइल। ये देखो, और ये राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है मैवेन, ये मैवेन की हमें जरूरत होती है। तो मैवेन इज अ बिल्डिंग टूल भी है जिसकी हेल्प से सारी जो चीजें, सारी जो डिपेंडेंसी है हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपकी सेलेनियम, टेस्टएनजी की अलग अलग डिपेंडेंसी कि इन डिटेल पढ़ेंगे हम, प्रैक्टिकली नो नीड टू वरी, सारी चीजें इन डिटेल पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे गाइस, वी आर गोना लर्न द थिंग ऑटोमेटिकली। अब ये कैसे हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली यहाँ। तो मैवेन हम पढ़ेंगे, बिल्ड लाइफ साइकिल क्या होती है, आपकी लाइब्रेरी कहाँ पे स्टोर होती है, कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे टेस्ट केस रन करते हैं, सारी चीजें इन डिटेल पढ़ेंगे। अब जैसे मैवेन हो गया, देन वी आर गोना लर्न अबाउट दी टेस्टएनजी। सर टेस्टएनजी क्या होता है गाइस, आप जावा विद सेलेनियम करो, प्लेराइट विद सेलेनियम करो, कोई भी टूल यूज करो, आपको हमेशा टेस्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायर्ड होती है। तब क्यों रिक्वायर्ड होती है, व्हाट इज द टेस्टिंग फ्रेमवर्क। टेस्टिंग फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है गाइस जो कि आपको क्या डिफाइन करता है, एक रिपोर्टिंग जनरेट करके देता है, अपार्ट फ्रॉम कितनी टेस्ट एग्जीक्यूट हुई है, कितनी फास्ट हुई है, ये सभी चीजों को बेसिकली प्रोवाइड करता है। इसीलिए कंपल्सरी हमें टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज करना होता है गाइस। भले ही आप पाइथन विद सेलेनियम करो, वहां पे भी पाइटेक्स्ट फ्रेमवर्क है, भले ही डॉटनेट विद सेलेनियम करो, वहां पे भी एलयूनिट फ्रेमवर्क है, भले ही आप जावा विद सेलेनियम करो, यहाँ पे भी आपका टेस्टएनजी फ्रेमवर्क है, भले ही आप जावास्क्रिप्ट विद सेलेनियम करो, वहां पे भी मोचा, जैस्मिन, अलग अलग फ्रेमवर्क है। तो इसीलिए ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए हम इसको पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे टेस्टएनजी क्या होता है, टेस्ट डेटा ड्रिवन बेसिकली अप्रोच होता है। तो टेस्टएनजी हम इन डिटेल पढ़ेंगे, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, टेस्ट केसेस कैसे क्रिएट करते हैं, एनोटेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होती है, आपकी टेस्टएनजी.xml फाइल क्या होती है, डिपेंड्स ऑन ग्रुप, डिपेंड्स ऑन मेथड, पैरेलल एग्जीक्यूशन,
आप एक्सेल फाइल से डेटा कैसे स्टोर करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। ये एक्चुअली आपका फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। तो ये सारी चीजें, हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, फील्ड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, लिसनर क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हाँ भाई, मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे कि सर जेन एआई हम पढ़ेंगे। हर टॉपिक के साथ जेन एआई पढ़ेंगे, जेन एआई का कैसे यूज करते हैं, एलएलएम कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं करते, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नो नीड टू वरी, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, मैं उसके तरफ भी आता हूँ। तो जैसे ही हो गया, तो गाइज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एपीआई टेस्टिंग, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था। सर एपीआई टेस्टिंग करते कैसे हैं? तो गाइज एपीआई टेस्टिंग के लिए वी हैव अ डेडिकेटेड टूल जिसका नाम है पोस्टमैन टूल। गाइज ये सारी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जब आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है ना, जब आपका रिज्यूम देखा जाता है ना, तब ये सारे स्किल्स देखी जाती है कि आप कैंडिडेट को ये सब कुछ पता है या नहीं, कैंडिडेट को ये सब कुछ आता है या नहीं। क्योंकि गाइज आज के ड्यूरेशन में वो टाइम गया कि पहले कैंडिडेट कंपनी हायर करती थी, उनको 6-8 महीने की ट्रेनिंग देती थी, हाँ फिर भाई आप आराम से काम करो। नो गाइज, देयर इज नो टाइम नाउ। कैंडिडेट कंपनी को रेडीमेड रिसोर्स चाहिए। कंपनी वांट्स, हाँ ये कैंडिडेट को आता है, आप क्लासेस करो, कोर्सेस करो, कहीं भी जाओ, पढ़ के आओ, बस यहाँ पे रेडी टू वर्क चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल फंडा। हाँ, जहाँ पे 4 लाख का सीटीसी है, वहां पे हम 6 लाख का सीटीसी दे देंगे, बट कैंडिडेट शुड बी रेडीमेड। वेरी सिंपल फंडा, कंपनीज आर यूजिंग, दे आर रेडी टू पे टू एक्स्ट्रा पैकेज, बट द ओनली थिंग इज गाइस, कैंडिडेट शुड बी रेडी टू वर्क, दैट्स ऑल। तो उसके पीछे भी रीजन है कि टाइम बदल गया ना। जैसे पहले जो था 3 घंटे की मूवी देख के आदमी खुश होता था, आज 15 to 20-30 सेकंड की रील देख के खुश हो रहा है। तो टाइम चेंज हो गया ना, तो जिस तरह से बाकी चीजें चेंज हुई है उस तरह से यहाँ पे भी चेंज हुआ है। तो लेट्स कम बैक टू आवर एपीआई टेस्टिंग। तो एपीआई टेस्टिंग जो होता है हम इन डिटेल पढ़ेंगे विद एन पोस्टमैन। तो आपके कर्ड ऑपरेशन क्या होता है, आपके रेस्ट एपीआई क्या होता है, सोप एपीआई क्या होती है, ये सारी चीजें हम इन डिटेल पढ़ेंगे। नॉट ओनली पोस्टमैन टूल गाइड, जो हमारा जो व्हाट गाइड, जो हमारा जो स्वैगर यूआई करके भी टूल है, वहां पे भी हम पढ़ने वाले। तो हमारा जो स्वैगर यूआई जो टूल है, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे हमारे रेस्ट एपीआई। तो एपीआई टेस्टिंग हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपीआई टेस्टिंग, सर एपीआई टेस्टिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, इंस्टॉलेशन से लेके एपीआई टेस्टिंग क्या होती है, वेब सर्विसेज क्या होती है, रेस्ट वेब सर्विसेज क्या होती है, आर्किटेक्चर क्या होता है, सोप प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके बाद आपके जो अलग अलग कर्ट ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्टेटस कोड से लेके आपके लाइव प्रैक्टिस ओवर द एपीआई टेस्टिंग, ये सारी चीजें इन डिटेल पढ़ेंगे हम। ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना लर्न इन डिटेल गाइस। अब जैसे ही हमारी एपीआई टेस्टिंग हो गई पढ़ के, देन गाइस एपीआई टेस्टिंग का ऑटोमेशन भी तो करना होता है। मतलब जो मैं यहाँ पे जो भी एपीआई है, जो मैं मैन्युअली हिट कर रहा हूँ, जो भी मेरे एपीआई है जो मैं मैन्युअली हिट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये मैंने रिक्वेस्ट हिट किया और यहाँ पे देखो नीचे मुझे रिस्पॉन्स मिल गया, तो ये होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो इसको भी हमें ऑटोमेशन करना होता है। तो इसके ऑटोमेशन के लिए वी हैव अ सेपरेट डेडिकेटेड टूल जिसका नाम है व्हाट गाइस, रेस्ट एश्योर्ड फ्रेमवर्क। What is the thing we have guys? REST assured framework. तो guys REST assured is a very very important thing. तो हम REST assured क्या होता है, ये एपीआई ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम एपीआई मैनुअल टेस्टिंग और एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग दोनों के दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं। सर मतलब एपीआई ऑटोमेशन आना जरूरी है गाइस। अगर आपको एपीआई ऑटोमेशन आ गया तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बाय द वे, जिनको यूआई ऑटोमेशन आ जाता है दे कैन इजीली स्विच ओवर द एपीआई ऑटोमेशन, नॉट अ बिग डील। बट जिनको यूआई ऑटोमेशन और एपीआई ऑटोमेशन, एपीआई टेस्टिंग सब अगर आता है गाइस, आपको ये दोनों चीजें आती है, दोनों लेयर आती है ना, यू विल बी डायमंड इन मार्केट। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको एपीआई टेस्टिंग आता है, अगर आपको यूआई टेस्टिंग आता है, इसका मतलब फॉर श्योर आपको डेटाबेस टेस्टिंग भी आता होगा। तो गाइस जिसको ये कंप्लीट लेयर पता है ना, ही और शी विल बी डायमंड इन मार्केट। he और she will be what guys, diamond in a market। और इसीलिए ये जो चीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस गाइस, हम एपीआई टेस्टिंग भी इन डिटेल पढ़ने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो और एपीआई ऑटोमेशन भी पढ़ेंगे। तो जैसे ही एपीआई ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट एश्योर्ड पढ़ लिया, देन वी आर गोना लर्न अबाउट द गिट। सर गिट क्या होता है, व्हाट इज द गिट वी हैव, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यू कैन सी गाइस, जैसे कि ये मेरे प्रीवियस बैच का प्रोजेक्ट है, मतलब प्रीवियस नहीं, जो अभी जो इसके बाद की जो मेरी 9:15 से 10:30 बजे की जो एक बैच होती है, उस बैच में मैनुअल टेस्टिंग का लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है। अब गाइस अगर मैं देखूंगा कि ये टेस्ट के सब देखो, ये टेस्ट जो है
ये अननोन है, अच्छा ये नहीं, चलो ठीक है, ये टेस्ट केस का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे नेम आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने फिल्टर अप्लाई करके रखा है। जस्ट मिनट, मैं आपको है ना ये फिल्टर हटा देता हूँ। जस्ट मिनट, ये मैंने फिल्टर हटा दिया। एंड नाउ आई वांट टू चेक, आई डोंट नो कि हु क्रिएटेड दिस टेस्ट केस। जब मुझे चेक करना होता है कि किसने टेस्ट केस क्रिएट की थी, कब क्रिएट की थी, क्या क्रिएट की थी, किसने क्या चेंजेस किया, जब मुझे चेक करना होता है तो दैट टाइम व्हाट कही, आई कैन सिंपली एक्सेस दिस जीरा टूल। यहाँ पे हिस्ट्री आई विल नेविगेट, मैं क्या करूंगा, हिस्ट्री नेविगेट करूंगा और यहाँ पे आई विल गेट एंड थिंक इन डिटेल। ये देखो करिश्मा यतनकर, शी इज माय स्टूडेंट, इसने कल ये टेस्ट क्रिएट की थी, उसने ये सारी टेस्ट ऐड की। तो मतलब जब जब मैं मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ सारी चीजें ट्रैक होती है, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि हम अकेले थोड़ी ना काम करते प्रोजेक्ट पे। डेवलपर होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट पीपल होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं। तो कौन क्या कर रहा है ये सारी एक्टिविटी करने के लिए मैनुअल टेस्टिंग में हम जीरा टूल यूज करते हैं। उसी तरह से जब भी हम कभी भी ऑटोमेशन करते हैं ना गाइस, ऑटोमेशन जब करते हैं तब हमें ये गिट का यूज करना जरूरी होता है। सर गिट होता क्या है? गिट यूज फॉर, गिट मेंटेन द वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। गिट क्या करता है गाइस? वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम मेंटेन करता है। इन शॉर्ट वर्जन कंट्रोलिंग टूल होता है ये। ओके सर, मतलब क्या होता है, किसने कब बेसिकली कोई कोड पुश किया है, किसने कब नहीं किया, ये सब कुछ मेंटेन करता है। ओके जैसे कि आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, ये देखो दिस इज व्हाट इज जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूं। और गाइस ये तो गिट जो होता है ये कमांड लाइन टूल होता है। ये तो हम लोकल से सिस्टम पे यूज करते हैं। जब हमारा कोई भी कोड, जब हमारा कोई भी प्रोजेक्ट, जब हमें ऑटोमेट करना होता है तो वहां पे हम क्लाउड रिपोजिटरी पे रखते हैं। तो ये गाइस हम गिट हब भी पढ़ने वाले, तो ये गिट हब पे हमें सारी चीजें दिखाई देती है। जैसे कि गाइस यहाँ पे देखो, मैं मेरी एक बैच का कोड उठाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे मेंशन है कि लास्ट ईयर में किसने कब किया था, क्या नहीं किया था, या फिर देखो सारी चीजें मेंशन है। ऑल थिंग्स आर मेंशन ओवर देयर, क्या चेंजेस किए थे, क्या नहीं किए थे, क्या है फाइल का नाम, क्या है, एवरीथिंग इज मेंशन। तो गाइस हम गिट और गिट हब पे भी काम करने वाले हैं। जो आपने प्रोजेक्ट लोकली क्रिएट किया होगा उसको हम यहाँ पे ऑटोमेशन पे भी, मतलब गिटहब रिपोजिटरी में भी अपलोड करेंगे। तो गिटहब पे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे नहीं करते, ये सारी चीजें इन डिटेल पढ़ेंगे। कैसे हमेशा याद रखना है, गिटहब पे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे नहीं करते, ये सारी चीजें इन डिटेल हम पढ़ेंगे। ओके तो गिटहब दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। अब जैसे ही हमारा गिटहब पढ़ के हो गया, देन व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, बेसिकली भी हम नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे हमारा जेंकिंस। सर जेंकिंस होता क्या है? दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द जेंकिंस। अब गाइस मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है कि सर ये टूल यूज करते हैं, सर ये पेड टूल होते हैं। गाइस हमेशा याद रखना है कि अगर कोई एम्प्लॉय, कोई कंपनी का एम्प्लॉय कोई पेड टूल पे काम करता है ना गाइस, तो उस एम्प्लॉय की कभी भी डिपेंडेंसी नहीं होती कंपनी के अंदर। क्योंकि कंपनी को पता है ये टूल जो यूज करेगा, जिसको पता है कैन इजीली वर्क देयर, और कंपनी का टूल कैसे यूज करना है, क्या करना होता है, वो तो कंपनी के लोग कभी भी बता सकते हैं। हाँ एडवांटेज, और बेसिकली वो पेड टूल के लिए यूज करने के लिए कंपनी हैज टू स्पेंड मनी। इसीलिए हमारा आता है पिक्चर में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी मतलब जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करो। एंड द गाइस एडवांटेज एंड ब्यूटी ऑफ दिस ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, आपको कोई भी पैसे पे करने की जरूरत है, एंड गाइस यू कैन इजीली वर्क फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी। और इसकी वजह से होता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। सेकंड एडवांटेज, अगर कंपनी को कोई टूल के ऊपर अगर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है तो कंपनी विल स्पेंड मनी ऑन यू। दिस इज द वेरी सिंपल थिंग वी हैव। इसलिए आपने देखा होगा ना कि हाँ सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को इतना पैकेज मिल गया, उतना पैकेज मिला, कभी कभी तो डेवलपर से भी ज्यादा पैकेज मिलने लगा, बिकॉज ऑफ गाइस आज की ड्यूरेशन में जो टेस्टर्स जो होते हैं उनके पास स्किल होते हैं। पहले जैसा नहीं है कि हाँ सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग आता है उतना ही है, नो गाइस अभी वैसा है ही नहीं। तो ये जेनकिंस हम पढ़ने वाले थे। तो ये जेनकिंस है तो है क्या? लेट मी एक्सप्लेन टू यू गाइस। ओके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब मैं थोड़ा आईटी का, जो आईटी के अंदर का, जो सॉफ्टवेयर के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वर्किंग कल्चर है, वो मैं आपको समझाता हूँ। हमेशा याद रखना है जब भी हम आईटी में काम करते हैं ना गाइस, वी आर वर्किंग ओवर द डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट। जैसे कि डेवलपर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए व्हाट वी हैव गाइस, वी हैव अ डेव एनवायरमेंट। उसी तरह से जो आपके क्यूए जो होते हैं, टेस्टर जो होते हैं, टेस्टर्स को टेस्टिंग के लिए क्या होता है आपका
QA एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड। उसी लिए एक होता है प्रॉड एनवायरनमेंट। सर प्रॉड एनवायरनमेंट क्या होता है? प्रॉड एनवायरनमेंट मतलब लाइव, जो कि आप यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो। देखो ये सारे के सारे आपके प्रॉड लाइव एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे क्या है आपके लाइव एनवायरनमेंट है। तो जब गैस हमें एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में कोड ऐड करना होता है, इस एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में कोड ऐड करना होता है, दैट टाइम व्हाट कम इनटू द पिक्चर गाइस? जेनकिंस कम इनटू द पिक्चर। तो जेनकिंस यूज फॉर CI/CD पाइपलाइन। जेनकिंस किसके लिए यूज किया जाता है गाइस? CI/CD पाइपलाइन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। और गाइस पहले जो होता था ना, मतलब लगभग अगर हम जाते हैं 7-8 साल पुराने पुराने वाले टाइम पे जाते हैं, पहले कैसा होता था गाइस? अगर डेवलपमेंट होता था ना, वो मतलब रिलीज हम 2 वीक, सॉरी 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ ऐसे हम रिलीज करते थे। बट गाइस आज के ड्यूरेशन में 2-2 वीक में रिलीज होते हैं। आज के वीक में हमारे 2-2 वीक में रिलीज होते हैं। तो इसीलिए क्यों होते हैं? विद द हेल्प ऑफ द जेनकिंस, विद द हेल्प ऑफ द CI/CD पाइपलाइन टूल्स। तो इसीलिए हम CI/CD भी इन डिटेल पढ़ने वाले, जेनकिंस भी इन डिटेल पढ़ने वाले। अब जैसे हमारा जेनकिंस हो गया, देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कुकुम्बर। सर कुकुम्बर क्या होता है? द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कुकुम्बर इज गाइस, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कुकुम्बर। ये क्या होता है? कुकुम्बर की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो इसको क्यों हम इसको पढ़ने वाले? लिसन केयरफुली गाइस, ओके। मैं क्या बताता हूँ आपको, यू कैन सी। अब जब आप कोई IT में कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना गाइस, वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। जैसे कि जिन लोगों को पता नहीं होगा, जिन्होंने पहली बार मतलब कोई सेशन ज्वाइन कर रहे हो आप, पहली बार इफ टाइम, तो मैं आपको इनसाइट्स कुछ बताता हूँ IT इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या एरियाज होता है, क्या क्या होता है। IT इंडस्ट्री के अंदर BA करके बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन होता है, ये कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करता है। प्रोडक्ट ओनर होता है, ये भी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करता है, ये BA से सीनियर लेवल पे होता है, प्रोडक्ट ओनर हम इसको कहते हैं। उसके बाद डेव होते हैं, उसके बाद QA होते हैं हमारे, उसके बाद डिजाइनर्स होते हैं हमारे, और उसके बाद डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं। ऐसे 6 पोजीशन होती है इस IT इंडस्ट्री में, जो कि सबसे ज्यादा हाई स्किल पैकेज आपको प्रोवाइड करती है। उसमें सबसे ज्यादा अगर हाई स्किल कोई पैकेजेस प्रोवाइड करने वाली पोजीशन होती है इसमें से, वो होती है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। सबसे ज्यादा बिजनेस एनालिस्ट, अगर आपकी 15-20 लोगों की टीम है, एक बिजनेस एनालिस्ट बहुत हो गया। प्रोडक्ट ओनर तो एक ही होता है। उसके बाद डेवलपर ज्यादा होते हैं, 3-4-5 डेवलपर होते हैं, टेस्टर 3-4-5 टेस्टर होते हैं। उसके बाद डेवऑप्स इंजीनियर जो होता है वो भी 1-2 इनफ हो गया। और उसके बाद डिजाइनर तो गई एक बड़ा, मतलब बहुत हो गया। तो ऐसा स्केलेटन होता है। तो गई ऐसा स्केलेटन होने के बाद आप अगर कोई ऑटोमेशन पे काम करते हो, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ डेव और QA काम कर पाते हैं। अगर बिजनेस एनालिस्ट, पीपल, प्रोडक्ट ओनर इनको काम करना है तो ये कैसे करेंगे? इसको इनको थोड़ी ना कोडिंग पता होता है, इसीलिए BDD स्टाइल भी आप यूज। तो डू यू हैव एनी एग्जांपल? अब यहाँ पे जो एक ये जो मैंने कोड ओपन करके रखा है, ये जो रेपो ओपन करके रखी है, यहाँ पे देखो ये कोडिंग है। बट अगर मैंने ऐसा ही कोई कुकुम्बर प्रोजेक्ट अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो भाई, यू विल गेट टू नो। सी, आपके लेमन लैंग्वेज में कोड अवेलेबल है या नहीं गई? दिस इज लेमन लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज को गर्किंग लैंग्वेज कहा जाता है, और इट इज अ पार्ट ऑफ द कुकुम्बर। तो गाइस यू कैन सी, ये देखो ये कुकुम्बर का सिंबल भी आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर कुकुम्बर। तो यस, हम कुकुम्बर भी इन डिटेल पढ़ने वाले। दिस इज अगेन फ्री ओपन सोर्स टूल भी। आप लगभग हमेशा याद रखना है, लगभग अगर आप ऑटोमेशन करते हो, UI ऑटोमेशन, तो ऑलमोस्ट 90% IT कंपनीज में, 90-80% IT कंपनीज में आपका कुकुम्बर के साथ ऑटोमेशन किया जाता है, UI ऑटोमेशन। हाँ, तो फिर व्हाट ये, अब गए हम टेस्ट इंजन भी पढ़ने वाले। जो लोग टेस्ट इंजन यूज करते हैं, तो बेसिकली कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंटैक्टिकल थोड़ा सा चेंजेस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भले ही आपकी कुकुम्बर की ओपनिंग हो या भले ही आपकी टेस्ट इंजन की ओपनिंग हो, everything we are gonna cover here. तो yes, we are gonna learn about the cucumber and test engine. अब ये जैसे ही हो गया, ये सब कुछ होने के बाद देन आज के ड्यूरेशन में प्ले राइट कम इनटू द मार्केट। सर प्ले राइट क्या है? अगर गाइस प्ले राइट के बारे में अगर मैं बताना चाहता हूँ कि दिस इज अगेन फ्री ओपन सोर्स टूल भी आओ। 5 साल पहले ये लॉन्च हुआ है, और ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ये भी अगेन फ्री ओपन सोर्स टूल भी आओ। फिर ये काम क्या करता है? अब गाइस जैसे कि आपके मार्केट में अलग अलग बाइक है, हीरो होंडा, बजाज, कावासाकी वगैरह, जो भी अलग अलग ब्रांड की बाइक है, उसी तरह से टूल्स में भी होता है। जैसे कि कोड राइटिंग टूल, इंटेलिजेंट आइडिया है, क्लिक है, अलग अलग टूल्स है।
लैपटॉप में ब्रांड्स होता है, HP, लिनोवो, डेल, उसी तरह से हम जब भी यूआई ऑटोमेशन करते हैं हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि पहला जो है सेलेनियम, या दूसरा आपको जो है प्लेराइट, और तीसरा जो है साइप्रेस और है। बट जो फ्री ओपन सोर्स और जो मोस्टली यूज किया जाता है सेलेनियम और प्लेराइट यूज किया जाता है। तो ये हम दोनों के दोनों चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले। प्लेराइट यूज कैसे करते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द प्लेराइट, व्हाट इज द यूज ऑफ द प्लेराइट, प्लेराइट क्या होता है, वेट्स वगैरह। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हो, ट्रेस व्यूअर क्या होता है, टेस्ट केस राइटिंग क्या होता है, जनरेटिंग क्या होता है, रनिंग एंड डिबगिंग टेस्ट क्या होता है, आपके एक्शंस वगैरह, डायलॉग, डाउनलोड, एक्सटेंसिबिलिटी, फ्रेम्स, सारी चीजें हम यहाँ पे इन डिटेल पढ़ेंगे। तो यस, प्लेराइट भी हम पढ़ने वाले। तो जैसे हमारा प्लेराइट हो गया, वंस वी आर डन विद एन प्लेराइट, then we are going to learn about the how to develop the automation framework from scratch. Okay, अब गाइस अभी ये बैच स्टार्ट होने से पहले जो मेरी एक बैच है, लाइक 6:45 टू 8 o'clock तक मेरी एक बैच है। वहां पे यू कैन सी, वहां पे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट चल रहा है। यू कैन सी 18-19 जो बैच है, यहाँ पे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट चल रहा है। तो गाइस हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये थ्योरेटिकल टेक्निकल टर्म पढ़ेंगे, एग्जैक्टली हमारे आईटी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट पे काम कैसे किया जाता है, हाउ पीपल आर वर्किंग, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जो टेस्ट के जिस तरह से हमने मैनुअल टेस्टिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस की थी, उसी तरह से हम लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग अप्रोच क्या होता है, स्पेस ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, स्पेस फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटी क्या होती है, और ऑटोमेशन फ्रेमवर्क सेटअप फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट योर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पेश भी किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तब मेरी याद पक्का आएगी। मेरा नाम गणेश जादव है, ठीक है, पक्का 100% आपको आएगी। तो कैसे डेवलप किया, मतलब कैसा है फ्रेमवर्क, ये पूछा जाता है। ओके, और ये सब कुछ होने के बाद विल हैव अ मॉक इंटरव्यू। सो दिस इज हाउ गाइस व्हाट ऑल ओवर द थिंग क्लियर। और इस तरह से हमारा कंप्लीटली कोर्स सिलेबस रहेगा। ओके, नाउ मेनी पीपल हैव अ क्वेश्चन। आई नो दैट कि आप सभी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाइक ब्राउचर्स वगैरह मिला ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा, टोटल 3.5 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, इंक्लूडिंग मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। हमारा टाइम यही रहेगा 8 से लेके 9:15 तक। ये हमारा टाइम रहेगा, यही टाइम रहेगा जो बैच अभी चल रही है। तो 8 से लेकर 9:50 तक हमारा बैच, 9:15 तक बैच रहेगा, 9:15 बजे तक हमारी रेगुलरली बैच रहेगी। ओके, उसके बाद फिर क्लास के फीचर्स क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर ऑफ द क्लास। डेली बेसिस पे 1.15 आवर का सेशन रहेगा। बैच विल बी ऑन मंडे टू फ्राइडे ओनली। ओके, मंडे टू फ्राइडे मतलब अब कुछ कैंडिडेट इसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते, सब 2 ही दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन वीक में हमारी बैच रहेगी। सैटरडे संडे वी डोंट हैव अ क्लास। सर व्हाई वी डोंट हैव अ क्लास ऑन सैटरडे संडे। अब देख क्या होता है, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है कोई कैंडिडेट्स को, ओके, वो लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाता है। तो गाइस आप सैटरडे संडे में चीजें डिफाइन कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, असेसमेंट सॉल्व कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो इसीलिए सैटरडे संडे वी डोंट हैव अ क्लास। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे हर एक सेशन जो होगा वो लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा। जैसे कि ये जो सेशन जो अभी आप अटेंड कर रहे हो ये भी लाइव है, रिकॉर्डेड है। तो हर एक सेशन लाइव रिकॉर्डेड रहेगा। ओके, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगा। यू विल गेट एन एक्सेस ऑफ लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग का एक्सेस हमेशा रहेगा, ठीक है। उसके बाद सर सर जावा क्या को एक बार हमारे, और बता सकते हैं? सॉरी अभिषेक, सर कोर जावा वाला थोड़ा एक बार और बता सकते हैं? हाँ मैं आता हूँ आपके तरफ, डोंट वरी, ठीक है, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। जी सर। तो क्या सर, तो क्या हम हमारी रिवीजन कब होगी सर, वीक में एक बार रिवीजन होगी। आंसर इज नो गाइड, हमारी हर दिन रिवीजन रहेगी। जैसे कि हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं ना, जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, शुरू के 15 मिनट्स ओनली वी आर डूइंग रिवीजन। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज है, दिक्कत है, तो गाइस आप इमीडिएटली वही पे स्क्रीन शेयर करके यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू मी। उसके बाद आपका व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म किया जाएगा, वहां पे मैं खुद ही रहूंगा। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है, just take a screenshot, paste it in the group and just ask me the question. I will help you over there as well. So every day revision will have, उसके बाद आपकी मॉक इंटरव्यूज भी रहेंगे। अब मेनी पीपल हैव अ क्वेश्चन, सर मॉक इंटरव्यूज कैसे होते हैं। तो गाइस अगर आप, दिस इज माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल,
अगर आप देखना चाहते हो तो इट्सो सर्विसेज के, जस्ट अ मिनट, इट्सो सर्विसेज का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे यू विल गेट एंड लाइक आपके जो भी इंटरव्यूज वगैरह जो होगी, मतलब जो कैंडिडेट्स के, देखो मेरे जो प्रीवियस बैच के जो कुछ कैंडिडेट थे, बाकी के सर के जो कैंडिडेट्स है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि दे आर गिविंग एन मॉक इंटरव्यू। ओके, तो इस तरह से यू कैन जस्ट वॉच द मॉक इंटरव्यू। तो हमारे क्या रहेंगे, हमारे मॉक इंटरव्यूज भी रहेंगे गाइस अब तक। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ के हो गए डायरेक्ट हाँ गो हेड विद एन इंटरव्यू, ऐसा नहीं गाइस, हमारे मॉक इंटरव्यूज भी रहेंगे। और तो और हम लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे और लाइव ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं अभिषेक की तरफ आता हूं। तो अभिषेक, कोर जावा में हम इन डिटेल जो कोर जावा है वो पढ़ने वाले हैं। जिनको जावा का जे भी नहीं पता है, वी आर गोना लर्न द थिंग्स हियर फ्रॉम स्क्रैच। जावा क्या होती है, इंस्टॉलेशन से लेके डाउनलोडिंग से लेके उसका कंपाइलर क्या होता है, जेडीके जेवीएम क्या होता है, कमांड्स क्या होती है रन करने के लिए, बिना कमांड्स के जैसे रन करते हैं, आपके बेसिक आइडेंटिफायर, आपके डेटा टाइप क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, आपके अलग अलग लूप कौन कौन से होते हैं, आपके फंडामेंटल्स ऑफ जावा क्या होता है, लाइक इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, कीवर्ड, मेन मेथड, एक्सेस मॉडिफायर, लोकल वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, जो आपके उप्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अपकास्टिंग, डाउनकास्टिंग, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम जब भी हम कभी भी कोई भी कोडिंग करते हैं, उसके लिए हमें कंपल्सरी एक्सेप्शन हैंडल करने की जरूरत होती है। सर एक्सेप्शन क्यों हैंडल किया जाता है? अगर आप कोई फोर व्हीलर लेके जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपका कोई टायर पंक्चर होता है तो गाइस आपके पास स्टेफनी होता है ना, ये ऐसे कोई अनसर्टेनिटी आती है तो हाँ वी हैव समथिंग। उसी तरह से कभी भी कोई कोडिंग में अगर कुछ एरर आता है तो गाइस हमें वो एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ता है, इसलिए जावा इज प्रोवाइडेड टू अस। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से लेके स्ट्रिंग क्लासेस, फाइल हैंडलिंग क्लासेस, आपके रैपर क्लासेस होता है, आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क क्लासेस लाइक से लिस्ट, मैप, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर अभिषेक? अभिषेक क्लियर? अभिषेक पांडे? यस सर। Okay, great. So this is what guys we are going to learn the thing here from scratch. Okay. तो ये होने के बाद you can see this is what guys entire portfolio we have. डेली बेसिस पे हमारी थ्योरी रहेगी। ओके, उसके बाद प्रैक्टिकल विल हैव, उसके बाद डेली बेसिस में असेसमेंट आपको रहेंगे, आपका डेडिकेटेड रिज्यूम प्रिपरेशन रहेगा, आपके नॉन टेक प्रिपरेशन भी रहेगा। दो पीपल आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, उनके लिए भी सेपरेट डेडिकेटेड आपका प्रिपरेशन रहेगा। हम लाइव एप्लीकेशन टेस्टिंग करेंगे, विल हैव अ सर्टिफिकेशन, और गाइस आपको अटेंड इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू, आपको रियल इंटरव्यू एंड देन जॉब प्लेसमेंट्स विल हैपन गाइस। दिस इज व्हाट गाइस एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ दिस कोर्स। ओके, अगर आपको कुछ भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है अबाउट द नोट्स, अबाउट द पीपीटीज, अबाउट द रिकॉर्डिंग, अबाउट द क्विज, प्लीज रीच आउट टू दिस नंबर। जिस नंबर से आपको लिंक आया होगा इस नंबर के पास रीच आउट करना है। These are the ITSO HR, they are working Monday to Saturday morning के 10 AM से लेके इवनिंग के 7 PM तक they are working guys. Okay, this is the thing basically I want to tell. Clear? यहाँ तक clear है सभी को? All of you, this one is clear? Is it clear to everyone? Yes. यस। Okay, great. अब मैं आपके I know that you are having a question. मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए सेपरेट डेडिकेटेड टाइम दूंगा, नो नीड टू वरी। अब नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू थिंग्स। सर तो एग्जैक्टली व्हाट इज द मार्केट वी हैव? तो कहीं पहले क्या होता था, मतलब अगर लगभग हम 8-9 साल पहले जाते हैं तो कहीं पहले क्या होता था, मैनुअल टेस्टिंग करके पोजीशन होती थी। बाय द वे आज भी मैनुअल टेस्टिंग पोजीशन है, बट सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग के लिए नहीं होता। तो पहले क्या होता है, मैनुअल टेस्टिंग पोजीशन होती थी, ये बंदा क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग करता था। मैनुअल टेस्टिंग मतलब जब हम कभी भी कोई भी टेस्टिंग करते हैं मैन्युअली विथ माय ओन हैंड, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, यू कैन सी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, तो मेरा लॉग आउट शुड बी हैपन। तो जब मैं कभी भी मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ विथ माय ओन हैंड, उसी को हम क्या कहते हैं, मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब गाइस व्हाट इज नेक्स्ट थिंग वी हैव? तो पहले दिक्कत क्या होती थी, लेट मी गिव द एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका वर्जन, जिसका नाम है विंडोज 10 करके सॉफ्टवेयर है। अब गाइस मेरे पास टोटल टेस्टर कितने, हाउ मेनी टेस्टर भी है? टोटल मेरे पास 12 टेस्टर है। अब 12 टेस्टर्स ने टोटल टेस्ट केसेस क्रिएट किए हैं। हाउ मेनी टेस्ट केस भी क्रिएटेड? इमेजिन करो कि 200 टेस्ट केस भी क्रिएटेड। और एक 200 टेस्ट, बाय द वे जिनको पता नहीं होगा टेस्ट केसेस, हम ग्रेजुअली पढ़ेंगे। ये जो मैंने बताया था ना आपको, यही टेस्ट केस होती है जो मेरी
प्रीवियस अभी जो करंट बैच के जो स्टूडेंट है जो मेरी इस तरह से टेस्ट क्रिएट करते, कैसे क्रिएट करते, क्या नहीं करते, पढ़ेंगे हम, नो नीड टू वरी। बट हमें कभी भी टेस्ट जब भी करना होता है, टेस्ट केस वी हैव टू क्रिएट। तो इमेजिन करो कि मेरे पास 12 टेस्टर है, मेरे पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको रिलीज मतलब इसको टेस्ट करने के लिए जो टाइम जो है मेरे पास वो है 1 मंथ का। ठीक है, मैंने 12 लोगों ने टेस्ट केस 200 टेस्ट केस क्रिएट की, उन्होंने टेस्ट भी कर ली, 1 मंथ के बाद रिलीज भी कर दिया। अब गाइस माइक्रोसॉफ्ट यहीं पे रुकता है? नहीं रुकता है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, नया वाला वर्जन लॉन्च किया, मतलब रिलीज करना है उनको, जिसका नाम है विंडोज 11। हमारे पास तो टेस्टर तो सेम है। ओके, अब इन्होंने नई टेस्ट केस क्रिएट की है, क्योंकि नई फीचर नई फंक्शनलिटी, सपोज इन्होंने किया लगभग लगभग 220 नई टेस्ट केस क्रिएट किए, और टाइम ड्यूरेशन तो सेम ही है 1 मंथ का। तो गाइस मुझे बताओ, अब यहाँ पे चैलेंज क्या होता है, जब जब हम कभी भी कोई भी नया प्रोडक्ट के अंदर कोई नए फीचर टेस्ट करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर दैट कि हमारी पुरानी फंक्शनलिटी प्रॉपर्ली वर्क हो रही है। हमें क्या मेक श्योर करना होता है गाइस, वी हैव टू मेक श्योर दैट कि पुरानी फंक्शनलिटी इज एग्जैक्टली वर्किंग फाइन। तो गाइस यहाँ पे अभी टोटल टेस्ट कितना एग्जीक्यूट करना है मुझे, 420। गाइस कैसे पॉसिबल है 420 टेस्ट केस 1 मंथ में 12 लोग कैसे टेस्ट करेंगे? चैलेंज है या नहीं गाइस? व्हाट डू यू थिंक, एग्री और नॉट? चैलेंज है या नहीं? अब गाइस ये तो हो गया, अभी एक सिनेरियो हो गया, विंडोज 12 आती है तो गाइस उस नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के और टेस्ट केस होंगी, तो गाइस ऐसे तो टेस्ट केस का काउंट बढ़ता ही जाएगा। तो सर फिर इसके ऊपर क्या है, टाइम फ्रेम भी बढ़ा दो। टाइम फ्रेम तो नहीं बढ़ा सकते, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। तो सर फिर टेस्ट पर हायर करो, कितने टेस्टर हायर करेंगे गाइस? 10, 15, 20, 30, 50, 60, 1000 कितने करेंगे? और जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब इतने सारे लोग कंपनी करेगी क्या? तो ये चैलेंज होता था। तो इसीलिए व्हाट गाइस, ऑटोमेशन टेस्टिंग कम विद द पिक्चर। इसलिए क्या पिक्चर में आ गया आपका, आपका पिक्चर में आया ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, लिसन केयरफुली। तो पहले क्या होता था, मैनुअल टेस्टिंग, पहले क्या होता था गाइस, मैनुअल टेस्टिंग होता था, फिर आया आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो जहां पर मैनुअल टेस्टिंग के लिए टेस्ट करने के लिए 1 मंथ इज रिक्वायर्ड, उसी तरह से अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है गाइस, और ऑटोमेशन में अगर मैं मेरी टेस्ट केस ऑटोमेट कर देता हूं, तो गाइस कोई मुझे बताएगा कि ये 200 टेस्ट केस मैंने ऑटोमेट कर दिया, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे 1 मंथ वॉज रिक्वायर्ड। तो वही टेस्ट केस ऑटोमेशन के थ्रू अगर मुझे रन करना है, कितना टाइम लगेगा? किसी को आइडिया है गाइस? 10 देने वाला देने आइडिया, एनीवन हैव एनी आइडिया कितना टाइम फ्रेम लगेगा आपके हिसाब से? बताओ। Maybe it will take in 10 days. 10 days, good observation. Okay, what about the people? और है किसी का कोई अदर ऑब्जर्वेशन गाइस? एनीवन हैज एनी अदर ऑब्जर्वेशन? We can execute Single day. within 1 day also. Pre-automation. गुड ऑब्जर्वेशन गाइस। ये आप यकीन नहीं करोगे, यू कांट इमेजिन, आपकी ये जो 200 टेस्ट थे ना, वो हार्डली 2 to 3 आवर्स में एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जहां पे आपको 1 मंथ रिक्वायर्ड था ना वो टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, 2 to 3 आवर्स ओनली, सिर्फ घंटे। और इसीलिए आज के ड्यूरेशन में हर कंपनी ऑटोमेशन के लिए पूछती है। इसीलिए अभी देयर इज अ नो स्कोप फॉर मैनुअल टेस्टिंग ओनली। मतलब मैनुअल टेस्टिंग तो करना ही करना है, आना ही चाहिए आपको, बट मैनुअल के साथ ऑटोमेशन भी आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हम ऑटोमेशन नहीं करते, पहले मैन्युअली करना पड़ता है, एंड देन दैट टाइम वी हैव टू डू द ऑटोमेशन। तो गाइस दिस इज द सिनेरियो वी हैव। तो सर पहले अगर मैनुअल टेस्टर में अगर सपोज 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो गाइस मैनुअल टेस्टर का सब तो कितना बेसिकली पैकेज मिलता था? गाइस हार्डली मैनुअल टेस्टर्स विल गेट 2 to 3 LPA, 2 to 3 LPA CTC ओनली विल गेट। अगर वही ऑटोमेशन टेस्टर अगर उसको 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो गाइस इजीली ही विल गेट एन CTC बिटवीन 4 to 6 LPA। यू कैन सी गाइस पैकेज डबल हो गया आपका। ओके, अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग आता है तो ऐसे पहले, मतलब ये होती है मैनुअल टेस्टिंग, ये होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब सर ये होने के बाद आई वुड लाइक टू टेल यू द इंटरेस्टिंग थिंग। सर तो फिर ये दोनों आना चाहिए, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? तो मैनुअल टेस्टर मैनुअल टेस्टिंग करेगा, ऑटोमेशन टेस्टर ऑटोमेशन टेस्टिंग करेगा, जिसको जो आता है वो करेगा। ये तो सर बहुत अच्छी बात है ना। पहले ऐसा ही था, मतलब हम लगभग 8-9 साल पहले अगर जाएंगे, पहले ऐसा ही था।
पहले मैनुअल टेस्टर सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग करता था, ऑटोमेशन टेस्टर सिर्फ ऑटोमेशन टेस्टिंग करता था। बट यहाँ पे दिक्कत थी कम्युनिकेशन की। क्या होता था, बहुत बार मैनुअल टेस्टर ने जो टेस्टिंग की है, जो टेस्ट केस लिखी है, वो ऑटोमेशन टेस्टर को समझ में नहीं आता था। ये दिक्कत थी। उसकी वजह से होता क्या था कि ऑटोमेशन टेस्टर क्लेम करता था कि हाँ नहीं मैनुअल टेस्टर ने काम ठीक से नहीं किया है, मैनुअल टेस्टर कहता था नहीं ऑटोमेशन टेस्टर ने काम ठीक से नहीं किया है। ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते थे। आईटी इंडस्ट्री इज वेरी क्लेवर इंडस्ट्री, उन्होंने ये प्रॉब्लम एनालाइज की और उन्होंने क्या किया गाइस, ये दोनों पोजीशन मर्ज कर दी एंड दे फॉर्म द न्यू पोजीशन जिसका नाम है एसडीईटी इंजीनियर। एसडीईटी इंजीनियर। सर एसडीईटी इंजीनियर क्या होता है? एसडीईटी इंजीनियर इज नथिंग बट गाइस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ द एसडैट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट। तो यस गाइस, ये पोजीशन ऐसी होती है कि ये दोनों आईटी ने क्या किया, ये दोनों पोजीशन मर्ज कर दी और इन्होंने फॉर्म कर दिया न्यू पोजीशन एसडीईटी। तो गाइस अगर आपको सर एसडीईटी क्या करता है, अब यही एक ही हायरिंग होगी, यही बंदा मैनुअल टेस्टिंग का स्पेशल करेगा, दोनों के दोनों एक ही करेगा। तो गाइस अगर आपको 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो गाइस इजीली यू विल गेट द सीटीसी बिटवीन 6 to 15 LPA इनके बीच में मिलेगा। सर ऐसा किस सीटीसी नहीं है? अब देख बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें भी मतलब आई हर्ड दिस थिंग मल्टीपल टाइम। कैंडिडेट बोलते हैं हाँ सर कोई फिक्स सीटीसी है, ये प्राइवेट सेक्टर है, ये कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कि क्लास 1 क्लास 2 कोई स्टेट लेवल की पोजीशन के लिए इतना सीटीसी, ऐसा नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर है, इसको जब चाहे कैसा भी सीटीसी मिलता है बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर स्किल। ओके, तो easily you will get the CTC between 6 to 15 LPA depending on project, depending on the company. तो गाइस इसीलिए आज की ड्यूरेशन में एसडीटी पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए अगर हम हमारा सिलेबस भी देखेंगे तो वहां पे क्या है, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन हम दोनों के दोनों यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये होने के बाद सर तो फिर कोडिंग रिक्वायर्ड है आज की ड्यूरेशन में। गाइस अगर आपको कोडिंग नहीं है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, बेसिक भी नहीं कोडिंग आती है, तो गाइस यू आर ऑलवेज बिन अ रेड जोन। आना ही चाहिए अगर आपको सच में आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सिचुएशन, आपका सच में जो रियल जो करंट सिचुएशन अगर आपको चेंज करना है, उसमें बदलाव लाना है, तो कोडिंग आना ही चाहिए बेसिक लेवल के। आई एम नॉट सेइंग कि एडवांस इन डेप्थ कोडिंग आनी चाहिए, तो आप टेस्टर क्यों बनोगे? बट गाइस बेसिक लेवल की कोडिंग आनी चाहिए आपको। यस इट इज रिक्वायर्ड। तो क्या क्या टूल हम कवर अप करने वाले? इंटेलिजेंट आइडिया, पोस्टग्रेसक्यूएल, जीरा, जावा, सेलेनियम, प्लेराइट, टेस्टएनजी, गेट, कुकुम्बर, जेनकिंस, मैविन। ओके, हम सारे टूल्स यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है एवरीवन। सो दिस इज व्हाट गाइस आई वांट टू टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। एंड गाइस आई एम ओपनिंग द हाउस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। दोज पीपल आर हैविंग एन क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड वन बाय वन एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन गाइस।